مسیح یسوع کے جلالی پرفضل قدرت والے نام میں آپ سب کو خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، موم ندا کی جانب سے خدا کے منصوب خادم بشپ فروخ صاحب اور اسی طرح بردر ایگر کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ اس نے پھر موقع دیا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی حسین باتوں کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ ہم جس بات پر آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں یہ کہنا کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ شاید خدا بہت زیادہ پڑھے لکھوں کو قبول نہ کرتا ہو، بہت زیادہ ڈگری والوں کو قبول نہ کرتا ہو، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے جو زیادہ دنیاوی علم ہے وہ غرور پیدا کرتا ہے، اور جب غرور پیدا ہوتا ہے تو ہم خدا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج بڑے سارے لوگ غریب ہیں، بڑے سارے لوگ کمزور ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ساری زندگی۔ ان کے ذہن میں کچھ خیال ہے۔ ابلیس ان کو یہی تانے دیتا رہتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں گے، آپ کی تو روٹی نہیں پوری ہو رہی، آپ نے کام کیا کرنا خدا کا۔ تو وہ اسی چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے کہ خدا کمزور لوگوں کو کیا کرتا ہے جی؟ استعمال کرتا ہے۔ جو دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، یا دنیا کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں، یا دنیا کے ددکارے ہوئے لوگ ہیں، آپ کا خدا اور میرا خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کہ خدا شاید پڑھے لکھوں کو اپنے خدمت کے اندر لے کر آتا تو وہ تو اپنی ہی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ میرا یسوع گیا مچھلیاں پکڑنے والوں کے پاس، اور اگر کوئی مچھلی منڈی کے اندر جائے تو آپ کو پتہ ہے وہاں اتنی سمیل ہوتی ہے کہ بندے کا محال ہے کہ وہاں کھڑا ہو سکے۔ تو حساب لگائیں تو جب مچھلیاں پکڑتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، یا جو مچھلیاں بیچتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن یسوع ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی شاگردیت کے اندر لے کر آیا، اپنا ڈسائپل بنایا، اور آج ان شاگردوں کا نام پوری دنیا کے اندر لیا جا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ کمزور تھے۔ بڑے سارے لوگ آج ان باتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھس پہلا ہی باب ہے، اور اس کی 26 سے 29 آیت مقدسہ کو پڑھیں گے۔ پولس رسول کا خط ہے، یہ پولس رسول نے خط لکھا کرنتھس کے نام، پہلا اس نے خط لکھا ہے، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26 سے 29 آیت مقدسہ، اس میں دیکھیں گے کہ خدا نے کیسے کیسے لوگوں کو پسند کیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے، لیکن سنیے گا کہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح لوگوں کو پسند کیا اور وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ جی اے بھائیو، اور بھائیو کا مطلب ایماندارو، اے ایماندارو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو، کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، ہاں جی، جسم کے لحاظ سے بہت سارے حقیر، بہت سے اختیار والے، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، اور بہت سے جو ہے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے، بلکہ خدا نے، سنیے گا، خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا، بیوقوفوں کو چن لیا۔ پہلے بندے جو چننے والا خدا ہے وہ دیکھیے کس طرح کے، خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں۔ حکیم حکمت رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں کہ ان کو شرمندہ کریں۔
और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया, जो हमारा टॉपिक है, खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा कि जोर आवरों को शर्मिंदा करें। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और खुदा ने दुनिया के कमीनों यानी कि जिन्हें रोटी नहीं मिलती, खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को जिन्हों दुनिया ने ठकरा दिया, कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों और को बल्कि बेवजूदों, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, समझे, पहले कमीनों, फिर हकीरों, फिर बेवजूदों को चुन लिया कि वजूदों को निस्त करें और भाई वजूद वालों को निस्त करें। आगे भी सुनिएगा, आखिरी पढ़ने लगे हैं। ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। सुनिएगा, खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत एक आवाज में कीजिएगा। अब देखो, इस सारे रेफरेंस के अंदर ये नहीं लिखा खुदा ने जिन्हें 10वीं की सी उन्होंने चुन लिया है। ये तो नहीं सुना आपने, जिन्हें BA किया सी उन्होंने खुदा ने चुन लिया, जिन्हें ग्रेजुएशन की सी, जिन्हें MPhil किया सी, ऐसी बात तो नहीं ना सुनी। पहली बात सुनी कि जो हकीर लोग थे, जो खाना नहीं मिलता था, कमीने लोग थे, जो दुनिया के रद्द किए हुए थे और जिनका कोई वजूद ही नहीं था, इनको खुदा ने चुना ताकि कोई बंदा खुदा के आगे फख्र ना करे। आज जो कमज़ोर बंदा है वो इस कलाम को सुने कि भाई खुदा आपको भी चुनना चाहता है। खुदा के आगे ये नहीं है कि आप तो कमज़ोर हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, आप तो खुदा का काम नहीं कर सकते। खुदा के आगे ये चीज़ें नहीं हैं। दुनिया के अंदर ये चीज़ें हैं। दुनिया वाले कहते हैं, ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास ये होता ना तो मैं आपके लिए ये कर सकता था। हैं, मैंने जब ये बड़ी गाड़ी ले ली ना तो बड़े बंदे मेरे पास आए, लै तुसी मैनू दसना सी यार, मैं तैनू ये 17 लाख दी लै देनी सी, तुसी एवं 24 लाख दी लई। हैं, दुनिया के बंदे इस तरह कहते हैं तसल्ली देने के लिए कि अगर तेरे को यह चीज़ होंगी ना तो फिर मैं तेरे लिए आ काम कर सकता सी, हैं, ताकि काम ही ना होए। ते खुदा जड़ा हकीरां, बेवजूदां, नकम्मियां, रद्द कीतियां नूं की कर लैंदा है, चुन लैंदा है, ताकि पढ़े लिखे लोग जदों नपढ़ बंदे नूं कलाम सुनांदे देखदे ने तो कहंदे लै असीं डिग्रियां कीतियां हैं ते इह नपढ़ी कलाम सुनाई जा रहा है। ये खुदा दिखाता है फिर उनको। मैं ऐसे कुछ रेफरेंस कलाम में से आपके पास रखना चाहता हूँ। ये दाऊद की कहानी है, दाऊद की स्टोरी है, और दाऊद भी अपने घराने में इस तरह ही नज़र आता है। दाऊद भी इसी तरह जो है उसको भेड़ बकरियां थमाई दी जाती हैं और कहता जा चल भी जा, सुबह तो जा तो शाम को वापस आ। सुनिएगा, पहला शमूएल 16 बाब पहली यतीम कस्सा को जब हम देखते हैं तो यहाँ जो बंदा रद्द किया हुआ है, जो दुदकारा गया है, उसकी अहमियत देखिएगा कि कहाँ चली जाती है। पहले शमूएल 16 बाब और उसकी पहली यतीम कस्सा में लिखा है, खुदा ने शमूएल से कहा है तू अपने सींग में तेल बार और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुन लिया है। अब शमूएल फौरी तेल भरदा सिंह दे अंदर है ते दौड़ ला दिंदा उधर नूं। ते इत्थे ते खुदा ने यह कहा है ना, उसके बेटों में से एक को, ना तो नहीं ना दसिया किसी का, उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से क्या चुन लिया है जी, बादशाह। साहब लो एकदम जे काल आ जाए, आ मैनुअल साहब खड़े हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इनू दे देनी है तो की खुशी होएगी, साहब लो है
है मैं कहना भावें नींद ही ना आए है 2-4 दिन मैं बादशाह बन गया है। तो इतने खुदा की कह रहा है वो बंदा जो पता नहीं कब भेड़ बकरियां लेकर जाता है, कब आता है, पता ही नहीं मुल्क का बादशाह कौन है, पता ही नहीं दुनिया के ऊपर क्या चल रहा है। कहता तू सींग में तेल भर और निकल जा, मैंने जो है बैतल हमी यसी के बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह क्या है जी चुन लिया है। अब पहुंच गया, उधर पहुंच गया, उसने अपने बेटे दिखाए, जिस तरह उसने अपने ना बेटे दिखाए, तो बेटे सारे कलाम दसदा है कि कद वाले, बुलंद कद वाले, कद की बुलंदी है उनकी। कलाम के अंदर लिखा है 16 बाब की 7 यातम कसा में कि जब उसने अपने 7 बेटों को खड़ा किया तो शायद इस तरह कहता हो कि भाई ये मेरा पहला बेटा है, इसका कद है 6 फुट 6 इंच है, ये मेरा दूसरा बेटा है, इसका कद है 7 फुट 4 इंच है, तो करदियां आखिरी बेटे तिकर कहता है इसका कद है 10 फुट 10 इंच है। तो खुदा ने फौरी सैमुअल ने एक गल कर दी, उन्हें कहा सैमुअल सुन। पर खुदावन ने सैमुअल से कहा, यहां भी आप देख सकते हैं, पर खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, ये ना देख वो 7 फुट का है, ये ना देख वो 8 फुट का है, ये ना देख वो 9 फुट का है। खुदा ने सैमुअल से उसी टाइम कह दिया तू उसका चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। जितने 7 खड़े किए हैं ना, नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नहीं देखता, खुदावन इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नजर करता है। हालेलुया। उन्हें क्या कद वाले ना वेख है, ते उन्हें एकदम पूछया 7 खड़े आ 7 ते उन्हें काटा ला दिता, उन्हें कहा नहीं ऐ भी नहीं कबूल, ऐ भी नहीं कबूल, ऐ भी नहीं कबूल। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 के उत्ते उन्हें काटा ला दिता, उन्हें कहा नहीं नहीं ये नहीं, हमें ये नहीं है, ये बादशाह नहीं बन सकते, जोरावर हैं, खूबसूरत हैं, कदावर हैं, ये नहीं बन सकते। उसने कहा कि इन 7 में से, यहां लिखा है यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुअल के सामने निकाला और सैमुअल ने यसी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर उन्हें पूछा तेरे बेटे पूरे हो गए? उसने कहा बेटे खत्म? उसने कहा नहीं एक है। तो भावें उन्हें भी कहता छड़ पर वो छड्डो जी गल, हो तो बस सुबह जाता शाम नूं बस भेड़ बकरियां दित्तियां उन्होंने चार चूर के आ जाना, भावें इदां दियां भी गल्लां करदा होए हैं, उन्होंने छड्डो जी, वो ज़रा ढिला आदमी है तो उन्होंने मैं एक काम लाया वो बस उधर नूं चल जाना है। लेकिन ये जोर आवर है, ये खूबसूरत है, ये कदावर है, इनकी बात करें। खुदा ने कहा सैमुअल इसको बता दे मैंने इनको चुना ही नहीं है, इन 7 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये फारग है। उसने कहा भाई उससे बुला, ज़रा उसको बुला कर ला, सुने इस बात को। तो जहरी गल फोन तो है नहीं सी कि फोन के दऊर साहब आयो ज़रा घर परौने हैं, ये ऐसे तो हुआ नहीं होगा, है कोई बुलाने गया होगा। उन्हें कहा आ यार वो सानू तो बादशाह बनाया नहीं, शायद तू बन जाए। हैं उन्हें कहा यार पता नहीं, मैनू की पता बादशाह कौन होंदा है, मैं तो सुबह नूं आना शाम नूं मैं जाना है। तो उसे जब बुलाने गया तो वो जब आ रहा है, सुनिएगा, पहला सैमुअल 16 बाब और उसकी 12 आयत मुकस्सा में लिखा है, सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाए। जब वो उसे बुलवा कर अंदर लाए तो खुदा के बंदा सैमुअल ने दूर ही से देखा। दूर ही से जब दाऊद पर नजर पड़ी तो खुदा ने एकदम से सैमुअल के दिल में डाल दिया कि यही है बंदा जिसे मैं बादशाह बनाने वाला हूं। घर वालों ने तो रद्द कर दिया, दुनिया वालों ने तो रद्द कर दिया, लेकिन मैं नकम्मों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। और वो बादशाह बन गया, मुल्क की कमान उसे सौंप दी गई,
मुल्क का बादशाह, आगे पीछे प्रोटोकॉल, महल के अंदर रहना, शाही खाने खाना। तो पहलों भावें घरों रोटी बन के जाता हो है पौने च, तो उत्थे ही ऐ कदी अंब तोड़ लिया खा लिया, कदी कुछ तोड़ लिया है। तो हिसाब लगाओ फिर खुदा किदां दे लोगों को पसंद करता है। वो कह सकता था ना, ढूंढो जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैंने उसे बादशाह बनाना है। वो बंदा जो भेड़ बकरियां, उसने कहा यही है, इसे ही मैंने बादशाह बनाना है। सुनिएगा, यहाँ एक और बंदे का जिक्र करता जाऊं, इसका नाम जदून है। खुदा कमज़ोर लोगों को इस्तेमाल करता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप टेंशन ना लें, खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला है। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ये जदून है, ये गरीब आदमी है, मुश्किल से रोटी खाता है। जब खुदा का फरिश्ता इसे मिला तो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गया। इसने कहा मैं मर जाना, हुण मैं नहीं बचना। क्योंकि पुराने ज़मानों में जो कोई बंदा फरिश्ते को देख लेता था वो मर जाता था, वो जिंदा ही नहीं रहता था। तो खुदा ने इसे कहा सुन, तू नहीं मरेगा, तूने अगर फरिश्ता देख भी लिया तो भाई तू नहीं मरेगा, तू जिंदा ही रहेगा। क्या हुआ, खुदा ने इसे कहा, जब इस तरह फरिश्ता मिला, खुदा ने इसे कहा कि भाई तूने इसराइल को बचाना है, मैं तुझे बता रहा हूं। तो वो की कह रहा है, उसने उससे कहा, कज़ा 6 बाप और 15 यतीम कसा, उसने उससे कहा ए मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं, कौन सा तरीका है कि मैं बनी इसराइल को बचाऊं। मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है, सुन लीजिएगा, मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। लेकिन खुदा ने क्या, नहीं तू टेंशन न ले, मैं तो कमज़ोरों को उठाने के लिए आया हूं, जो हकीर हैं गरीब हैं, मैंने उनको इस्तेमाल करना है। खुदा ने कहा ऐलान कर दे, ऐलान कर दे कि तू फौज तैयार करनी है, ऐलान कर कि तूने फौज तैयार करनी, मैं उधर तुझे भेजूंगा, तूने इसराइल को बचा कर लाना है। इसने ऐलान किया जी, एकदम ऐलान किया तो 32,000 लोग तैयार हो गए, असी लड़ना है, असी लड़ना है। खुदा ने क्या, असी लड़ना है, हमने लड़ना है भाई, खुदा ने हमें हुक्म दिया, हमने लड़ना है। तो 32,000 लोग तैयार हो गए। खुदा ने क्या, बंदे बहुत तैयार हो गए हैं, नारे भी बहुत मार रहे, हालेलुया हालेलुया है। खुदा ने क्या, उन्होंने कहा कि अगे जाके मर भी सकते हैं, जंग लड़नी है, कोई क्रिकेट खेल के नहीं आ जानी है, जंग लड़नी है, अब मर भी सकते हैं आगे जाके। खुदा ने कहा ऐलान कर, जो कोई अपने घर को जाना चाहता है चले जाए, जिसको अपने बच्चों की याद सताती है, बेगम की याद सताती है, घर चले जाए। तो 22,000 वापस चल गए। हिसाब लाओ, 22,000। कभी कभी असी बड़े नारे लाते हालेलुया है, तो जो कहिए ना बिजली का बिल तारना चर्च का, लै साढ़े को तो है ही नहीं है, बड़े असी नारे लाते हैं। सुनो, तो 22,000 वापस, 10,000 रह गए। खुदा ने कहा ठहर जा, अभी भी ज़्यादा है। उन्हें क्या ज़्यादा है, उस्ताद जी कहता अगे 22,000 चल गया है, कहता नहीं अभी भी ज़्यादा है। सुने, खुदा ने कहा इन्हें ले जा चश्मे के ऊपर। कमज़ोर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। खुदा क्वांटिटी को नहीं देखता, तादाद को नहीं देखता, खुदा क्वालिटी को देखता है। आमीन। सो खुदा ने कहा ले जा इन्हें पानी के ऊपर, पानी के चश्मे के ऊपर इन्हें ले जा। कज़ा 7 बाब 6 यतीम कसा में, जेड़ा तो कहता घुटने टेक के ना पानी पिएगा ना इदा हत्थां दे नाल, उनके ऊपर भी नज़र रखना। तो जेड़ा लम्मे पै गए कुत्ते वांगू चपड़ 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 पिएगा ना, कहता उत्ते भी नज़र रखनी। ये कलाम के अंदर लिखा है, इसको पढ़िएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट हो ज़रा। खुदा ने कहा दोनों बंदियां के उत्ते तेरा ध्यान होना चाहिए। जेडे घुटने टेकणगे उन्होंने भी लैदा कर दी, जेडे चपड़ चपड़ पीणगे उन्होंने भी लैदा कर दी। भाई उन्हें इदा ही किया, वो देख रहा सी, 10,000 बंदे नूं देख रहा सी। सुनो, अगे बढ़ते तो जेडे घुटने टेक के पीण वाले सी ना, वो 300 सी, यानी कि जिन्होंने बड़े तमीज़ ना पानी पीता, कहने का मतलब है वो 300 सी।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਪੜ ਪੀਤਾ ਉਹ 9700 ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ, 9700 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ? 300। ਤੇ ਜਦੂਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਏ ਇੰਨੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਾ जंग लड़नी। वो अपने आप को कमज़ोर समझता है, अपने आप को बहुत कमज़ोरी के अंदर देख रहा है। कहता 300 लेके कितने जावांगा, उन्होंने को तो जदीद असला है, उनके पास तो जदीद जो हथियार है, मैं कैसे लड़ पाऊंगा। तो खुदा ने कहा टेंशन ना ले, तू इन्ना 300 के नाल जाना। तो मैं समझदा शायद उन्हें ना ऐदा भी तखमीना लाया हुआ। अब ये 300 जदून के पास है, 300 ये फौजी उसके पास है, और जिससे लड़ने के लिए जाना है ना ਉਹਦੇ 1,35,000 ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? 1,35,000। खुदा जो है कमज़ोरों को क्या करता है जी? इस्तेमाल करता है। अब हिसाब लगाएं, ये 300 और ये हिसाब लगाएं 1,35,000 लोग। तो सोचता तो होना ना, फिर उन्हें कैलकुलेशन कड्डी है। उन्हें क्या 1,35,000 नूं 300 के उत्ते अगर तकसीम कर दिता जाए ना तो 450 बंदा उन्हां दा ते एक बंदा साडा। हुण एक बंदा 450 बंदियां नाल लड़दा होवे हैं तो कैसा लड़दा होएगा हैं? हिसाब लाओ। वो मैनूं लगदा ते पैंदियां ही होणियां हैं। तो जो कोई होश नहीं होए किन्ने मारिया है, वो भावें इदा ही पूछता है परा हो है, इदा ही करता है। हिसाब लगाए 1,35 तकसीम 300 450, यानी कि जदून का एक ते उधर 450। लेकिन पढ़ कर देख लीजिए खुदा के कलाम को, ये एक कमज़ोर बंदा भी उधर के 450 पर हैवी हो गया और मेरे खुदा ने इन्हें फतह दे दी। हालेलुया। क्योंकि खुदा कमज़ोरों को क्या करता है जी? ये ना सोचे भाई हम कमज़ोर हैं, ये ना सोचे। मुझे याद है जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया ना तो बड़े सारे बंदे जो है वो बातें करते थे, बहुत सारे बंदे। तो जो फरूक साहब ने किया उदों तो समझ लो खीर ले हुण वो भी कहंदे बिशप बन गया है, सुने। लेकिन खुदा ने हम कमज़ोरों को ज़ोर दे दिया। हालेलुया। हम कमज़ोरों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर दिया। आज हम खुदा के उस खादम के साथ हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है। और इसके बाद एक और कमज़ोर बंदा मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले अपनी बात किया कि भाई हम भी कमज़ोर थे, लेकिन खुदा ने हमें क्या दिया है जी? ज़ोर दिया है। आपको एक और बंदा मैं मिलवाना चाह रहा हूँ, ये वाला बंदा देखें। क्यों सलामत साहब? जब दुनिया किसी को ठकरा देती है या दुनिया किसी को रद्द कर देती है तो खुदा उसी को चुन लेता है ताकि वो खुदा का काम करना शुरू कर दे। हालेलुया। अब ये बंदा जिसको सारी मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ कहते हो हैं, लेकिन जब ये तस्वीर लगी ना, जब ये हम मिलकर आए पादरी साहब से, मुझे याद है। और ये तस्वीर हाँ जी वेदी साहब भी नाल सी है। आमीन। सो खुदा इसे बरकत दे। ये भी बंदा बड़ा अच्छा है। खुदा का काम देखिए, मेरा मकसद ये है कि अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो टेंशन न लें। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपकी गरीबी को नहीं देखता, खुदा आपकी पस्तहाली को नहीं देखता। भाई ज़कई तो रद्द किया हुआ बंदा था, ज़कई से तो कोई बात नहीं करता था। तो जब वो मेरे यस्सु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ा तो मेरे यस्सु ने पास आकर कहा, भाई ज़कई नीचे आ, आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। तो ज़कई परेशान है कि यस्सु ने मेरे नाम का किवें पता लग गया है। मैं तो सिर्फ देखना सी तो यस्सु ने लंघ जाना सी, तो यस्सु ने पता किवें लगा कि मेरा नाम ज़कई है।
یہی سوچ رہا ہے, سارا کھانا بھی لگا رہا ہے, پانی بھی رکھ رہا ہے, ڈشز بھی رکھ رہا ہے, تے سوچے نہیں دیا ہے کہ یسو نے میرے نام دا کیویں پتہ لگ گیا ہے. تے پوچھ ہی لیا, یسو جی میں بڑا پریشان ہاں. انہیں کہا کی مسئلہ؟ انہیں کہا تینوں میرے نام دا کیویں پتہ لگا کہ میرا نام زکئی ہے؟ یسو نے کہا میں جانتا ہوں تیرا نام زکئی ہے, تو نے یہ AC لگایا یہ کن پیسوں سے لگایا ہے, تو لوگوں سے کس طرح ناحق لیتا ہے, مجھے پتہ ہے سارا. تو انہیں کہا مینوں معاف کر دے, مینوں پتہ لگ گیا تو واقعی خدا دا بیٹا المحبوب ہے جدا دنیا انتظار کر رہی سی, تو دنیا چ آ گیا ہے. ہالےلویا. تے انہیں کہا لے میں اپنا سارا ہی پیسہ جیڑا ناحق لیا ہے میں لوگاں نو 2 گنا 3 گنا نہیں بلکہ 4 گنا کر کے واپس کرنا. تو انہیں کہا آج اس گھر دے وچ کی آئیے. سو جب ہم گئے یہ تصویر سوشل میڈیا پر لگی, فیس بک تے جدو تصویر لگی تے بڑے سارے لوگوں نے مینوں فون کیتا. انہوں نے کہا لے پادری صاحب ساڈے نالوں تے ناصر ہی چنگا ہے کہ پادری صاحب نو مل آیا. تو وہی کلام کی بات جو سچ ہوئی کہ اس نے بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ جو حکمت والے ہیں ان کے لیے یہ بڑا نمونہ ہو. ہالےلویا. حکمت والوں کو پتہ لگ جائے. سو آج خدا کے پیاروں جتنے بھی آپ ہیں, آپ اگر کمزور ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کمزور ہیں, آپ فکر مند نہ ہو. اور بھائی آپ کا خدا تو آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اگر ابلیس آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے نا او بھائی تو پڑھا ہی نہیں ہے, تو نے خدا کا کام کیا کرنا ہے, تو ابلیس کو کہیں کہ میرا خدا جو علم کو بانٹتا ہے وہ مجھے علم دے سکتا ہے. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی سچ برکت سے نوازے.